गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पावर एंड प्ले। आज है 15 जुलाई 2026। कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि पावर प्ले क्या होता है। आज हम उसका एक रिवीजन करेंगे और उसके बाद में उसके आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि एक बहुत ज़्यादा पतला पेपर जिसकी थिकनेस अराउंड 0.001 सेंटीमीटर, कल हमने इसको mm लेके लिया था, आज हम इसको सेंटीमीटर में देखेंगे। तो उसको हम कितने बार फोल्ड कर सकते थे मैक्सिमम टाइम्स और उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे थे। तो हमने उसको फोल्ड किया था तो वी वर नॉट एबल टू फोल्ड इट मोर देन 7 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स के बाद ही नहीं फोल्ड कर पा रहे थे क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट हो गया था। तो हम देखते हैं कि जब हमने इसको 10 टाइम्स अगर हम फोल्ड कर पाएंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि जब हमने 10 टाइम्स तक फोल्ड किया तो हमारी थिकनेस जो 0.001 सेंटीमीटर थी वो हो गई हमारी 1.024 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? सी, ये दिस वैल्यू इज लेस देन mm, very less than mm, and now it is converted into 1.024 centimeter after 10 folds। ठीक है, कितने टाइम्स ये इंक्रीज किया? 1024 टाइम्स इंक्रीज कर गया ओनली 10 फोल्ड्स में। जब हम इसको उस 10 फोल्ड्स को 20 टाइम्स करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया 10.474 मीटर में। 10.474 मीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन सी, नाउ दिस स्मॉल डिस्टेंस इन 20 फोल्ड्स कन्वर्टेड इनटू 10.474 मीटर। एंड कितने टाइम्स बढ़ गया? ये 1024 टाइम्स बढ़ रहा है। और उसी 20 फोल्ड्स को जब हम 30 टाइम्स करेंगे तो अब हमारा कितना हो गया? नाउ यू कैन सी द यूनिट, व्हाट द यूनिट इज रिटन हियर, दिस इज किलोमीटर, मीन्स 10.726 kilometer. This 0.001 centimeter is converted into 10.726 kilometer in only 30 folds. Understood? 10 kilometer, you can imagine. Now again when we have folded it to 40 times, what value we are getting? Now see, 10,984.2 kilometer. This value is converted into 10,984.2 kilometer in just 40 folds. Again, you see, when you have folded it to 50 times, you have folded a thin sheet of 0.001 centimeter into 50 times. What you have observed? You can see this value. What is this value? If you see this value, understood? What is this value? 1,12,47,820.8. This is what? Kilometer. You imagine 1 crore kilometer is from which place to which place. You can imagine this much large amount of distance. Understood? 1 crore 12 lakh 47,820.8 kilometer when you have folded just a very small distance of 0.001 centimeter, I mean thickness, to 50 times only. Now you can imagine if we fold it to 64 times, what will be the result? So this is what is this? ये क्या होगा? This is multiplicative growth and this is called exponential growth. What is this? This is multiplicative growth and this is called exponential growth. ठीक है?
और आपने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ का और एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या कितना एक्सपोनेंशियली आई मीन उसकी वैल्यू कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अप टू 10 फोल्ड इट इज almost up to 1 or 2 or 3 or 4 folds it is almost negligible. Once it come to the 10th fold it is noticeable, and after the 10 folds you can see how fast the value is increasing, ठीक है। So what is multiplicative growth and exponential growth is that, see what we were doing, zero point zero zero one, see it was centimeter or anything, you can take it as any unit. Now this value we have folded once. What we have done actually, we have multiplied by 2, understood, then the value which comes is 0.002, again we multiplied it by 2, understood, then what we are doing, we have multiplied 1 times, then 2 times, then 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या किया था, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, ठीक है। फिर कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 4 टाइम्स। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि सी एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, we are multiplying 2 to itself by these number of times with the original value, understood, what actually we are doing, we are multiplying, see in this case what we have done, we have multiplied till now, what we have done, we have multiplied 2 4 times, we have multiplied 2 4 times to with the original value 0.001, understood, ठीक है। how can you represent this, we can represent this by 2 raised to the power 4 and we have to multiply this by 0.001 and we will get the value, क्या वैल्यू आएगी हमारी, हमारी वैल्यू आएगी 0.016, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और ये वैल्यू आई, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, what is happening, this is from downwards it is happening multiplicative or exponential growth of the number 0.001, understood, this is multiplicative growth or exponential growth। अब हम चैप्टर को इसके आगे पढ़ेंगे, what is that, your topic 2.2, see your topic 2.2 is what, exponential notation and operations। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, exponential notations and operations, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, हमने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया था,
4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, वी हैव रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, इसको हम और भी बार कर सकते हैं। हमें कितना स्पेस मिला है, कितना स्पेस हमने लिया ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए? इसी को हम एक स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से कि when we are multiplying the same number by itself, we can represent it like this by counting how many times we are multiplying that number by itself। ठीक है, और इसके हमने स्पेशल केस देखे थे। स्पेशल केस क्या थे चैप्टर नंबर 1 में? स्पेशल केसेस क्या थे? स्पेशल केस था हमारा स्क्वायर। उसमें हम क्या कर रहे थे? सेम नंबर को सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। मींस इफ वी हैव n and we are multiplying it by n only one time and we are representing it like this। ठीक है, दिस इज n स्क्वायर्ड। सेकेंड स्पेशल केस क्या था हमारा? सेकेंड स्पेशल केस था हमारा वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। व्हाट वी गॉट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड n क्यूब। ठीक है, नाउ इसके बाद में जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे वो जनरल टर्म्स में आ जाते हैं कि लाइक हमने मल्टीप्लाइड ये 4 टाइम्स किया हमने, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा? ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? से 10। अब इस केस में ये क्या है हमारा? इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या कहते हैं? पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं? बेस। इन दिस एक्सप्रेशन दिस टर्म इज कॉल्ड बेस एंड दिस टर्म इज कॉल्ड पावर। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारी पावर क्या है? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारी पावर क्या है? 10। और बेस क्या है? 2। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल को चेंज करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारी पावर क्या है? 12। और एक्सपोनेंट क्या है? 12। और बेस क्या है हमारा? 7। ठीक है, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन एंड दिस इज द स्पेसिफिक और एग्जांपल which and you can find out which number is power and which number is base। Understood? Now how we will read this, the special case of square? We read it like n squared। Special case of cube we read it like n cube। But in general form how we read it? See, we say 2 raised to the power 2 raised to the power 4। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? टू रेज टू दी पावर 4। ठीक है, और कैसे पढ़ सकते हैं?
फोर्थ पावर ऑफ 2, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ 2। और कैसे पढ़ सकते हैं, 2 पावर 4। एक्चुअली दिस रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली दिस 2 रेज टू द पावर 4 को हम इतने लंबे स्टेटमेंट को ना प्रोनाउंस करके ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं 2 पावर 4। अंडरस्टूड। और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट इज दैट, लेट्स चेक फ्रॉम योर बुक। यस, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे रीड करेंगे, 2 टू दी पावर 4। जनरली ये 4 एक्सप्रेशन से हम ये 4 वे से हम रीड करते हैं इस एक्सप्रेशन को, 2 रेज टू दी पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 2 एंड 2 पावर 4 और 2 टू दी पावर 4, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बट इट इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब इसको हम इस जनरल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, n रेज टू दी पावर a, ठीक है, एथ पावर ऑफ n, ठीक है, देन n पावर a, अंडरस्टूड, देन n टू दी पावर a, दीज आर द एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें हमारा बेस n हो गया और ये a हमारा एक्सपोनेंट हो गया। अब इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूं। जब भी ये एक्सप्रेशन लिखा होता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई n, वी हैव टू मल्टीप्लाई n बाय इटसेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, a टाइम्स, a times. We have to multiply n by itself a times. In particular case, if it is written here 3 raised to the power 6, it means this expression is saying we have to multiply 3 by itself 3 how many times? The power which 3 have 6 times. 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लास नेक्स्ट आपके बुक में एक क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स, द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर v। तो ये एक स्पेशल केस बता रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि एक पीस ऑफ पेपर को हमने 10 टाइम्स फोल्ड किया है, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन उस 10 टाइम फोल्ड को एक्सप्रेस कर रहा है, और 10 और उसकी जो इनिशियल थिकनेस थी वो v थी। तो हमने जैसे एग्जांपल में हमने देखा था, जो हमने समझा था, उसमें हमने इनिशियल थिकनेस कितनी ली थी, इनिशियल थिकनेस कितनी ली थी हमने, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस केस में वो हमें कौन सी थिकनेस दे रहा है, क्या है गिवन थिकनेस, इस केस में पर्टिकुलरली उसने हमको एक अननोन थिकनेस v करके दिया हुआ है, ठीक है, v करके दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको जब हम 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो कौन सा एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा 10 टाइम्स फोल्ड को, ठीक है ना।
तो एक्सप्रेशन 1 क्या है हमारा 10v, एक्सप्रेशन सॉरी ऑप्शन 1 क्या है 10v, ऑप्शन 2 है 10 प्लस v, ऑप्शन 3 है 2 इंटू 10 इंटू v, ऑप्शन 4 है व्हाट इज हाउ विल यू रीड दिस 2 raised to the power 10. Okay, then 2 raised to the power 10 into v is the option 5th, and 10 raised to the power 2 into v is the option 6. Which one is correct? Now see, इसको समझते हैं फिर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे. हम क्या कर रहे हैं, ये v है, हमने इसको 1 फोल्ड किया, मीन्स 1 फोल्ड किया, वी हैव मल्टीप्लाइड v by, we have just multiplied v by v. What we have done, we have multiplied, कितने टाइम्स किया हमने, कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड किया 2 टाइम्स. ठीक है, जब हमने 2 फोल्ड किया तो क्या किया हमने v इंटू वी इंटू वी, ये कितना हो गया हमारा, we are multiplying v by 2. ठीक है. इन नेक्स्ट केस व्हाट वी आर डूइंग, जो इनिशियल था हमने उसको फिर से 2 से किया, एक दूसरा फोल्ड करने के बाद में हमने उसको इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 किया. ठीक है, तीसरा फोल्ड में हमने क्या किया, एक और फोल्ड किया तो एक और 2 ऐड हो गया. ठीक है ना, दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स. नेक्स्ट क्या होगा, 4 टाइम्स में क्या होगा हमारा v इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है, आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है 2v. इन दिस केस क्या आ रहा है, इसकी पावर आप 1 लगा सकते हैं. इन दिस क्या आ रहा है हमारा 2 की पावर 2v. इस केस में क्या आ रहा है 2 की पावर 3v. इस केस में क्या आ रहा है 2 की पावर 4v. तो ऐसे करते 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 जब हम 10 बार आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो कितना आ जाएगा. इसी पैटर्न को आप देखेंगे तो 2 की पावर 10v. सो दिस इज आवर राइट आंसर, 5th इज आवर राइट आंसर. अंडरस्टूड. इस तरीके से हमने इसको निकाला है, आप इसको समझ सकते हैं. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके चैप्टर में क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें एक नंबर दिया हुआ है 32400 एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर. ये हमको इस नंबर को हमको इसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है. सो व्हाट वी विल डू, first we will find out the prime factors of this number, then we will express this number in then we will express this number as a prime factor. Okay, so to find out the prime factor of this number, what we have to do, 32400 we will do prime factorization. Understood. See, now we'll try it for 3.
Now we will try for 5. So we have find out the prime factors of this number. We will express this number as prime factors. Now इसके क्या prime factors? How we will express this number as a prime factors? We will write it as 2 into 2 into 2 into 2. Then 3 into 3 into 3 into 3. ठीक है? Then 5 into 5. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में. अब नाउ दिस एक्सप्रेशन वी हैव, सिंस वी आर लर्निंग द पावर प्ले चैप्टर, नाउ वी विल एक्सप्रेस दिस नंबर एज ए पावर and we will represent it. How? We are multiplying 2 by 4 4 times, then 2 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 5 is multiplying by itself only one time. Then so this is the expression 32400. We can express this number like this in the exponential form and like this in the prime factor form. Okay, so what we have learned that we can represent any number in the exponential form by doing its prime factorization, and we the number of times the particular factor is coming, we can take it as the power of that number and we can write. ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा जो हमने प्राइम फैक्टर किया था 2 हमारा आया था 4 बार, तो हमने 2 की पावर 4 कर दिया और इस तरीके से 3 की पावर 4 कर दिया एंड 5 की पावर 2 कर दिया. अगर इस तरीके से हमें कोई एक जनरल एक्सप्रेशन आता है से a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी, एक तरीके से हमें एक जनरल एक्सप्रेशन आता है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स a केम, a रेज टू द पावर 4 इंटू हाउ मेनी टाइम्स b केम 1 2 3 4 5, b रेज टू द पावर 5 इंटू c रेज टू द पावर 2. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस टाइप में अगर कोई नंबर हमें एक्सप्रेस्ड है, इस टाइप में हमें कोई नंबर एक्सप्रेस्ड है, और अगर ये प्राइम फैक्टर का एक्सप्रेशन है किसी नंबर का, तो किसी नंबर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. Now class C, we know we can get the square or cube of any numbers. The number may be real number, integers, or fractional number, or decimal number. Understood? But the square of the natural numbers are the perfect squares and the cube of the natural numbers are the perfect cube. Understood? But in this chapter we are not restricted to the perfect squares and the perfect cube, and that's why we will see how the power works on the integers also. ठीक है, तो integers में हमने देखते हैं कि -1 एक नंबर है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आएगा? आपका क्या रिजल्ट आएगा? When minus is multiplied by minus, your result is positive and this is your value. ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. कितना आएगा? सी, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. इसको मैं करके दिखाता हूं.
दिस वैल्यू इज कम एज 1 इंटू -1, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा -1, समझ में आया। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई -1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, अब सी इसको देखिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया, फिर +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया, तो कितना आएगा 1। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। पहले हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू -1 कितना आया 1, बाकी एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 1 बाय दिस नंबर, और रिजल्ट इज -1, ठीक है, -1। देन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय दिस नंबर, और रिजल्ट इज 1। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया 1। द सेम वे इफ वी मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय 5 टाइम्स, व्हाट वी विल गेट -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर क्या आया, सी 1 इंटू 1, -1 इंटू -1 1, देन -1, देन 1, देन -1, तो कितना आया -1 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, कैन यू सी, ऑड टाइम्स में हमारा जो माइनस को अगर हम उसकी पावर ले रहे हैं तो ऑड पावर्स जो है हमारी निगेटिव में आ रही हैं और इवन पावर्स हमारी पॉजिटिव में आ रही हैं, ठीक है। जब हमने कोई इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर की पावर की हमने इवन, पावर हमारी क्या है इवन नंबर है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन रहेगा, ठीक है। अगर हमारी नेगेटिव इंटीजर की पावर इस केस में हम 1 ले रहे हैं, इवन ऑड है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन मींस अगर 4 की पावर, अगर -4 की पावर हमारी 16 है तो हमारा रिजल्ट प्लस साइन में आएगा, ठीक है। और अगर -4 की पावर 17 है विच इज अ ऑड नंबर, तो हमारा रिजल्ट निगेटिव में आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, हमारा रिजल्ट माइनस साइन आएगा। ये कंक्लूजन हमने निकाला, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि -1 की पावर अगर 58 है तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा, सी 58 इज अ इवन नंबर, तो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है -2 की पावर 4 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या है ऑड है, इवन है, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। पहले हमने ये दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4 इंटू -2 इंटू -2, फिर हमने ये एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया -16 इंटू -2, फिर हम ये एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा
सॉरी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, यहाँ पे हमारा 8 आएगा, अंडरस्टूड। और यहाँ पे हमारा 16 आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको समझते हैं। सी 0 इंटू 0 अब क्या आएगा, आप खुद इमेजिन करिए कि यू आर मल्टीप्लाइंग 0 बाई 0, व्हाट इज द रिजल्ट, योर रिजल्ट इज 0, ठीक है। इट मीन्स वी मल्टीप्लाई 0 बाय itself to any times, its result will always come 0, मीन्स अगर 0 की पावर 4 है तो भी आपका आंसर 0 आएगा, अगर 0 की पावर 100 है तो भी आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ओके क्लास, तो हमने समझा कि ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि 0 की कितनी भी पावर हो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।